دہشت گردوں کا ڈیرہ اسماعیل خان میں رورل ہیلتھ سینٹر پر بزدلانہ حملہ، فائرنگ سے 2 لیڈی ہیلتھ ورکر، 2 بچے اور 1 چوکیدار جاں بحق۔ سیکیورٹی فورسز کے کلیئرنس آپریشن میں 3 دہشت گرد مارے گئے۔ جوانمردی سے لڑتے ہوئے 2 سیکیورٹی اہلکاروں نے جام شہادت نوش کیا۔ نائب صوبیدار محمد فاروق اور سپاہی محمد جاوید اقبال شامل۔ دہشت گردوں کی بنو چھاونی میں داخل ہونے کی کوشش ناکام، بارود سے بھری گاڑی چھاونی کی دیوار سے ٹکرا دی۔ حملے اور خودکش دھماکے میں 8 فوجی جوان شہید۔ کلیئرنس آپریشن میں سیکیورٹی فورسز کا دہشت گردوں سے مقابلہ، بھرپور جوابی کارروائی میں تمام 10 دہشت گرد مارے گئے۔ دھماکے کے نتیجے میں دیوار کا کچھ حصہ گر گیا، اس سے ملحقہ انفراسٹرکچر کو بھی نقصان پہنچا۔ ترجمان پاک فوج کے مطابق گھناؤنی کارروائی افغانستان میں بیٹھے گل حافظ بہادر گروپ نے کی۔ صدر آصف زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی بنو کینٹ پر دہشت گردوں کے حملے کی مذمت۔ صدر زرداری نے کہا، جوانوں نے بروقت کارروائی کر کے قوم کو بڑے نقصان سے بچا لیا، دہشت گرد عناصر کا جڑ سے خاتمہ کیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں، پوری قوم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کھڑی ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے حملہ ناکام بنانے پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا۔ تحریک انصاف پر پابندی کا فیصلہ ابھی نہیں ہوا، اتحادیوں سے مشاورت کی جائے گی۔ اسحاق ڈار کی لاہور میں گفتگو۔ نائب وزیر اعظم کہتے ہیں، نون لیگ کی قیادت اور اتحادیوں سے مشاورت کے بعد ہی پابندی لگانے یا نہ لگانے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ پی ٹی آئی کے خلاف ای سی پی کے پاس فورن فنڈنگ کے ثبوت ہیں۔ کوئی ادارہ جو ہے اس سے ماورا نہیں ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ سپریم کورٹ کی یا کسی اور عدالت کی جو ٹرف کے اوپر جو ہے ہم ٹریس پاس کریں، کہ ہم سیاستدان جو ہیں وہ اتنے جو ہے ان کو کمزور نہ سمجھا جائے۔ عدالتیں اپنا احترام کرائیں، سیاستدانوں کو اتنا کمزور نہ سمجھے۔ وزیر دفاع بھڑک گئے۔ خواجہ آصف بولے، آج کل ادارے آئینی حدود سے تجاوز کر رہے ہیں۔ عدالتی نظام 9 مئی میں ملوث افراد کو تحفظ دے رہا ہے۔ آئین کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف آرٹیکل 6 لگتا ہے اور آرٹیکل 6 کی کارروائی ضرور ہونی چاہیے۔ سیاسی جماعتوں پر پابندی کسی مسئلے کا حل نہیں، مسلم لیگ نون کے رہنما جاوید لطیف کی نیوز کانفرنس۔ حکومت سے گول میز کانفرنس بلانے کا مطالبہ کیا، بولے سیاسی جماعتیں ملک کے لیے خطرہ بن جائیں تو انہیں قومی جماعتیں نہیں کہا جائے گا۔ 9 مئی کو جو کچھ ہوا، کیا کوئی قومی جماعت یا لیڈر کر سکتا ہے؟ ریاست کو کمزور کرنے والے خفیہ ہاتھ سامنے لائے جائیں۔ پاکستان میں کینیا جیسا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے۔ جو کچھ ہو رہا ہے اس کی ذمہ دار پی ٹی آئی خود ہے، اور ہمارے صرف یہ ہے کہ اگر وہ سیاسی پارٹی بن کے چلے تو بالکل ایک سیاسی پارٹی پہ تو ہم کسی طریقے سے پابندی لگانے کے فیور میں نہیں ہے، لیکن پی ٹی آئی کا جو رول رہا ہے وہ ایک سیاسی پارٹی کا افسوس کہنا پڑتا ہے کہ نہیں رہا ہے۔ پی ٹی آئی موجودہ صورتحال کی ذمہ دار وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں، اگر تحریک انصاف سیاسی جماعت کی حیثیت سے چلے تو ہم بھی پابندی کے خلاف ہیں۔ پاکستان میں سیاسی جماعت پر پابندی کے فیصلے پر امریکہ کو تشویش۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کہتے ہیں، پاکستان میں سیاسی جماعت پر پابندی سے متعلق ہم نے حکومت کے بیانات دیکھے ہیں۔ یہ اقدام انسانی حقوق، آزادی اظہار رائے، جمہوری اصولوں کی پرامن پاسداری کی مخالفت ہے۔ نئے توشخانہ ریفرنس میں تفتیش کے لیے نیب ٹیم کے اڈیالہ جیل آمد۔ بانی پی ٹی آئی اور اہلیہ بشرا بی بی سے آج تیسرے روز بھی پوچھ گچھ کی گئی۔ نیب ٹیم نے گزشتہ روز بھی بانی پی ٹی آئی اور اہلیہ بشرا بی بی سے 3 گھنٹے سے زائد تفتیش کی تھی۔ پی ٹی آئی کارکن سنم جاوید فیملی کے ہمراہ کے پی ہاؤس اسلام آباد منتقل۔ وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈاپور کی ہدایت پر کے پی کے ہاؤس میں سنم جاوید کی مہمان نوازی کی گئی۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور سنم جاوید کے والد اور شوہر کے ساتھ رابطے میں تھے۔ سپریم کورٹ کے آرڈر پر عمل درآمد۔ الیکشن کمیشن کا اجلاس جمعرات کو دن 11 بجے طلب۔ اجلاس میں سیکرٹری الیکشن کمیشن اور لیگل ونگز کے حکام کی بریفنگ دیں گے۔ سپریم کورٹ کے آرڈر پر عمل درآمد کے مختلف پہلوؤں پر غور کیا جائے گا۔
एड हॉक जजेस की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास 19 जुलाई को तलब। एड हॉक जजेस के लिए 4 नामों पर गौर होगा। जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम ने एड हॉक जज बनने से माजरत कर ली। जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद, जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम रजामल, जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने अब तक जवाब नहीं दिया। हम क्या कह सकते हैं, आवाम कुछ कर सकती है या हमारे कहने से कुछ हो सकता है तो फिर हम कुछ कह भी दें। इस मुल्क का ये कानून है, ये आप देख लें कि गरीब मर रहा है, किसी को परवाह नहीं है। इसकी कीमतें थोड़ा मज़ीद बढ़ाने के बजाय कम कर दी जाए तो आम आदमी को जो है ना थोड़ा सा फ़ायदा हो। महंगाई से परेशान अवाम पर हुकूमत का पेट्रोल बम से बार। पेट्रोल 9 रुपये 99 पैसे, हाई स्पीड डीजल 6 रुपये 18 पैसे महंगा। अवाम ने फैसले को मुस्तरद कर दिया। कीमतों में इजाफा अवाम दुश्मन इक़दाम करार, फैसला वापस लेने का मुतालबा। IMF के नए प्रोग्राम से पाकिस्तान के लिए फंडिंग के इम्कानात में बेहतरी आएगी। नया IMF प्रोग्राम फाइनेंसिंग के मोतबर ज़राए फराहम करेगा। आलमी रेटिंग एजेंसी मोडीज ने पाकिस्तानी मईशत से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि महंगाई की वजह से समाजी तनाव बढ़ने का खदशा है। ज़्यादा टैक्सों और तमन्नाई के नरखों में मुस्तकबिल की एडजस्टमेंट इस्लाहात पर दबाव डाल सकती है। पाकिस्तान की बैरूनी पोजीशन अब भी नाजुक है। शहर शहर क़रिया क़रिया हुसैन की मजलिस, हुसैन का मातम। नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथियों की अजीम कुर्बानी को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए जुलूस व मजालिस का इनेकाद। अज़ादार नोहाख़वानी और मातमदारी में मसरूफ़। लाहौर, कराची और पेशावर में मरकज़ी जुलूस अपने रवायती रास्तों पर गामज़न। कराची में एम ए जिन्ना रोड पर और लाहौर में सिराज बिल्डिंग के करीब नमाज़ ज़हरैन अदा की गई। इस्लामाबाद, कोयटा और दीगर शहरों में भी जुलूस अपनी अपनी मंजिलों की जानिब गामज़न। अज़ादारों की नोहाख़वानी, ज़ंजीर ज़नी और मातमदारी। शोहदाए करबला की याद में मुल्क भर में मजालिस बरपा, अलम और ताज़ियत थामे। अज़ादार नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फर्जंद की पुरसादारी में मसरूफ़। अज़ादारों की शबीर ज़ुलजना की ज़ियारत, ग़मे हुसैन अलैहिस्सलाम में डूबे। अज़ादारों के लिए पानी और शरबत की सबीलों का ख़ास एहतमाम। जगह जगह लंगर की तक़सीम। कोट डीजी अज़ादारी के लिहाज से सिंध भर में मशहूर सोने से बना मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का रोज़ा, शहज़ादा अली अकबर का सहरा, शहज़ादा अली कासिम की दस्तार और शहज़ादा अली असगर अलैहिस्सलाम का झूला। मोमिनीन की तवज्जो का मरकज़, कदीम दौर के ताज़िये और बड़े अलम पाक भी शामिल। कराची, लाहौर, पेशावर समेत कुछ अजला में 10 मुहर्रम तक डबल सवारी पर पाबंदी। जुलूस के रास्तों और अतराफ में मोबाइल फ़ोन सर्विस भी बंद। लैंडलाइन, वाईफाई पर इंटरनेट सर्विस बहाल रहेगी। कराची में 9 मुहर्रम अल हराम के लिए ट्रैफिक पुलिस का प्लान जारी। ट्रैफिक को गुरु मंदिर चौक से आगे जुलूस के रूट पर जाने की इजाज़त नहीं होगी। नाज़माबाद से आने वाले गार्डन से होकर मंजिल की जानिब जा सकते हैं। तारीख़ इस्लाम में 9 मुहर्रम उल हराम सन 61 हिजरी को यौम तासुआ कहा जाता है। 9 मुहर्रम को शिमर गवर्नर कूफा इबदुल्ला इब्न ज़ियाद का ख़त लेकर करबला पहुंचा। इसमें उमर साद को हुक्म दिया था कि वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ सख्त रवैया अपनाए या फिर लश्कर की क़यादत शिमर के सुपुर्द कर दे। उमर इब्न साद ने 9 मुहर्रम को जंग शुरू की तो इमाम हुसैन ने उससे एक रात की मोहलत ली, जिस पर सुबह आशूर तक जंग रोक दी गई। दश्ते करबला को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम समेत 72 शुहदा ने अपने खून से सनेचा। इनमें इमाम मज़लूम अलैहिस्सलाम के जिगर पारे और हम शक्ल पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम भी शामिल थे, जो सूरत में, सीरत में, रफ्तार में, गुफ्तार में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशाबिहा थे। तहसील फैजगंज में जुलूस की ड्यूटी पर जाने वाले पुलिस एहलकारों पर फायरिंग, गोलियां लगने से 3 एहलकार शदीद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जैकबाबाद में गैरत के नाम पर खातून समेत 2 अफराद का कत्ल, मुसल्लह अफराद सदर थाने के हदूद में गोलियां बरसा कर फरार, लाशें बुरसा के हवाले। खुशाब की शेरगढ़ नहर में कश्ती उलट गई, रेस्क्यू वर्कर्स ने एक बच्चे को बचा लिया। कश्ती में 11 अफराद सवार थे। डूबने वालों की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी। भावल नगर में नहर में डूबने वाली एक बच्ची को बचा लिया गया, एक की तलाश जारी। रावलपिंडी के घर में डकैती का मुअम्मा हल, वारदात में घरेलू मुलाजिमा और उसकी वालिदा मुलविस निकली। मुलजिमान घर से 1 करोड़ से जायद की नकदी, चाकू,
4 तोले तलाई जेवरात और दीगर सामान लूट कर फरार हो गए थे। पुलिस ने मुलाजमा, उसकी वालिदा और भाई को हिरासत में ले लिया। चोरी की रकम, जेवरात और दीगर सामान बरामद कर लिया गया। मानसून हवाएं मुल्क के बेशतर इलाकों में आज से दाखिल होंगी। आज से 21 जुलाई के दौरान इस्लामाबाद, पंजाब, केपी, बल्ूचिस्तान और कश्मीर में बारिश मुतवक्के। बलूचिस्तान में कल से 19 जुलाई के दौरान बारिश का इम्कान। कराची में आज भी गर्मी, पारा 39 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। शाम और रात में बूंदाबांदी और हल्की बारिश मुतवक्के। सल्तनत ओमान के इलाके वादी अल कबीर की मस्जिद अली में यौम आशूर की मजलिस आज़ा में फायरिंग। मुसल्लह अफराद ने मस्जिद में घुसकर गोलियां चला दी। 2 पाकिस्तानियों समेत 5 अफराद जा बहक, कई जख्मी। मस्जिद में ज्यादातर पाकिस्तानी कम्युनिटी के अफराद थे। मजलिस के बाद यौम आशूर का जुलूस बरामद किया जाना था। पाकिस्तान की इमाम बारगाह अली इब्न अबी तालिब पर दहशतगर्दों के हमले की शदीद मसम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक ओमान में पाकिस्तानी सफारत खाना शहीद पाकिस्तानियों की शनाख्त के लिए हुक्काम के साथ मुसलसल राब्ते में है। गजा में इसराइली बर्बरियत जारी। सहूनी फौज ने इनवरा के दफ्तर पर बमबारी कर दी। 11 फलस्तीनी शहीद, कई जख्मी। 48 घंटों में सहूनी फौज के हमलों में 320 फलस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे पर भी सहूनी हमलों में 4 अफराद शहीद हो गए। शहदा की मजमूई तादाद 38,664 हो गई। यमनी फौज का बहर अहमर में 3 जहाज़ों पर ड्रोन्स और मिसाइलों से हमला। एक जहाज़ को मामूली नुकसान। अमरीकी सेंटकॉम ने दावा किया है कि यमन से भेजे गए 5 ड्रोन फिजा में तबाह कर दिए। रिपब्लिकन पार्टी ने बाज़ाब्ता तौर पर ट्रंप को सदारती इंतखाब के लिए नामजद कर दिया। मिल्वाकी शहर में रिपब्लिकन पार्टी का नेशनल कन्वेंशन में मंदूबीन की नामजदगियों की अक्सरियत हासिल। डोनाल्ड ट्रंप ने सेनेटर DJ वेंस को अपना नायब सदारती उम्मीदवार बना लिया। और एशिया कप में शिरकत के लिए पाकिस्तानी विमेंस क्रिकेट टीम कप्तान निदा की क़यादत में कराची से बरास्ता दुबई, कोलंबो के लिए रवाना। पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम अपना पहला मैच दम्बोला में रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ 19 जुलाई को खेलेगी।